Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today in this video we are going to learn standard 6 social science chapter number 3, that is ancient towns and scripture, and that is of part 3. Okay, in previous video we have already discussed about the economic and social life as well as religious life and funeral of Harappan civilization and the people those who are living in that. Okay, now in this video we are going to learn the script and languages which were used by Harappan people and civilization. So script and language, coins, seals, copper plates have been found from remains of Harappan civilization. So coins, seal, copper plates, all the things that had been found here, फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन. वॉट एवर द रिमेन्स, मतलब जो बाकी बची हुई चीज़ें थी वो हड़प्पियन सिविलाइजेशन की, तो उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली? कॉइन्स, सील, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा. ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड, मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ है, विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्टीरियस लैंग्वेज. ओके, ऑन दैट द थिंग्स और द टेक्स्ट विच इज़ रिटन ओवर दैट, सो सम आर अनरिसॉल्व, मतलब वो सॉल्व नहीं हुए हैं. कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं वो? मिस्टीरियस, मतलब टोटली सीक्रेट है, जिसको हम रहस्य बोल सकते हैं. सो दैट इज़ इन दैट लैंग्वेज. Although these writings are short words with mantras and joined with other words are found. So these all writings are short words. So these writings are written in a short words with matra. आपको पता है ये सारी जो मात्रा होती है वो. And joined words are found. Not only the matras are there but even joined words are also found. Lot of attempts have been made to decipher करना मतलब to solve करना. Okay, this script, but it has not been successful yet. What happened that so many times the historians try to solve this script, that what had written over there, but they are not successful in that. वो कैसे सक्सेस की जाए, वो सक्सेस नहीं हुआ है. मीन्स विच वॉट आर द लैंग्वेजेस रिटन ओवर दैट, स्टिल इट इज़ मिस्टीरियस. वो आज भी कैसी है? एक मिस्ट्री है, मतलब एक रहस्य है. एंड द राइटिंग्स हैड द शॉर्ट वर्ड्स विथ मात्रास एंड इवन जॉइंट वर्ड्स आर ऑल्सो देयर. देन प्लेसेस ऑफ Harappan civilization in Gujarat. So which are the places which are that the part of Gujarat? So small and big colonies of Harappan civilization have been found in Gujarat, like Rangpur in Lothal in Ahmedabad district. You have to remember these with the name of district. Okay, so which are there? So small and big colonies of Harappan civilization, and among them Rangpur and Lothal, which is part of Ahmedabad district. Then Rojdi means Srinathgarh, that is in Rajkot district. Desalpur in Kutch district. Dholavira, Surkotra and Lakha Bawal, that is in Jamnagar district. Amra Bhagatala, that is on the bank of Kim river in Bharuch district. So you have to remember these places of Harappan civilization which are there in Gujarat. Which are there? So Rangpur and Lothal, that is in Ahmedabad district. Rojdi in Rajkot district. Desalpur in Kutch district. Dholavira, Surkotra and Lakha Bawal, that is in Jamnagar district. Amra Bhagatala, that is on the bank of Kim river in Bharuch district. Okay, then after end of Harappan civilization, the historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invention. So what was the reason behind this end of Harappan civilization? So Harappan civilization किससे मतलब end हुआ? तो because of earthquake, that is the main reason. Earthquake is the main reason. Okay, main reason. Then after flood, epidemic मतलब पूरे वर्ल्ड में, जैसे राइट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना, कोविड-19, सो दैट इज़ एपिडेमिक डिसीज. देन एक्सटर्नल इन्वेंशंस करना मतलब चढ़ाई करना. कोई दूसरे राजा ने एक के ऊपर मतलब जो चढ़ाई की होगी उसके यूज से भी बन सकता है कि वो सिविलाइजेशन जो था उसका एंड हुआ. बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज अर्थक्वेक.
However, for today's historians, the end of it has been subject of research. But whatever the things are there, okay, that is the subject of the research. जो भी अभी हिस्ट्री की बाकी चीज़ें हैं तो वो क्या है, जो सब्जेक्ट है वो रिसर्च सब्जेक्ट है. देन आफ्टर अवर एंशियंट टेक्स्ट, मतलब एंशियंट मतलब ओल्ड जो टेक्सिस है वो. सो ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी. तो ऋग्वेदा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंशियंट मतलब ओल्ड टेक्सिस. सो एज फार एज दीज ओल्ड टेक्सिस आर कंसर्न, सो दैट इज 4 वेदास आर देयर. एक है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद and Yajurved. Okay, how many Vedas are there? So 4 Vedas are there. Rigved, Atharvaved, Samved and Yajurved. So first one we have to learn, that is Rigveda and its study. So 4 Vedas are there, that is Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. Rigveda is our oldest text. So from these 4 Vedas, which was considered as the oldest text? So Rigveda. It includes 128 hymns, with all are called suktas. What is sukta? Sukta means well spoken. Okay, जो टोटल हाइम्स मतलब मंत्र कितने हैं, रुचा जिसको बोलेंगे, मंत्र से थोड़े बड़े, तो 1028. ओके, 1028 एंड दैट इज कॉल्ड सूक्ता. और सूक्त मीन्स वेल स्पोकन. ऋग्वेदा इज अ रिस्पोजिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज. और वो जो है वो क्या है, एंशियंट नॉलेज का बहुत बड़ा ट्रेजर है. इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. सो विच 2 लैंग्वेज में लिखा है? सो ओल्ड संस्कृत. ओल्ड संस्कृत को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत. सो फ्रॉम हियर द फिल इन द ब्लैंक्स विल बी देयर, दैट ऋग्वेदा इज रिटन इन ब्लैंक और ब्लैंक लैंग्वेज. सो ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज. With the help of Rigveda, we get information about political, social, economic and religious life of Arya. Okay, so according to the creeds and all that thing, people are divided into 4 parts: Arya, Vaishya, Sudra, okay, and Brahmin. So आर्य जो थे उन लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. कहाँ से? सो ऋग्वेदा से. Historians, archaeologists study Vedas along with the relics to know about history. तो what is relics? Relics मतलब the things of past. Okay, things of past which is even present today. जो पास्ट की चीज़ है वो आज भी प्रेजेंट है, तो वो है relics. तो उसके यूज से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. Some of the hymns of Rig Veda are in a dialogue form. Now we have already discussed that total 1028 hymns are there. ओके, तो सम आर देयर इन अ डायलॉग फॉर्म. डायलॉग मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करे वैसे फॉर्म में है. देर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा. नॉट ओनली वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट आर्य, बट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन मैन ऑल्सो. देर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस लाइक गण, सभा एंड समिति. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द पॉलिटिकल लाइफ इज कंसर्न. जैसे आज लोग इन प्रेजेंट वी हैव गवर्नमेंट, तो वैसे वहाँ पे गण, सभा एंड समिति के भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति. समिति मतलब एक ग्रुप. ओके, तो वो किससे कनेक्टेड है? तो सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन, एक छोटा इंस्टीट्यूशन. जैसे समिति है, कोई ग्रुप है, वैसा. हेड ऑफ द स्टेट सेट in it and discuss important issues of the state and gave justice. Now who sat in this samiti? So head of the state का जो head होता था वो वहाँ पे बैठता था and discuss the important issues of the state and even gave the justice. The samiti was an elaborate body of the elected king. और समिति जो थी, ओके, वो क्या थी? elaborate मतलब huge, spread की हुई बॉडी, जो किंग जो था वो इलेक्ट करके बनाता था. आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग. और किंग अकेला रूल नहीं करता था, उसकी हेल्प करने के लिए किसको किसको बनाया जाता था? सो आर्मी चीफ एंड इवन प्रीस्ट मतलब जो पादरी होते हैं, मतलब जो भी टेम्पल्स या चर्चिस में वर्शिप करने वाले लोग हैं वो. वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेषणा. ओके, गवेषणा मीन्स वॉर. What is Gaveshna? So Gaveshna means a war. From Rig Veda we get reference to the battles between 10 kings on the bank of river Ravi river. So with the help of Rig Veda we get the information about battle मतलब fight.
ओके, लड़ाई करना। कितने किंग्स की? सो 10 किंग्स। एंड वेयर? सो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स us information about the social life of Aryas, okay, that we have already discussed. One of the unit of society was and family system was patriarchal and it was also joint family system. Patriarchal मतलब एक किंग है तो उसके ही फैमिली से दूसरा किंग बनेगा, उसके ही फैमिली से तीसरा किंग बनेगा, लाइक दैट. एंड इवन दे हैव द जॉइंट फैमिली सिस्टम, नॉट सेपरेट, दे हैव द जॉइंट फैमिली सिस्टम. Society was not divided into castes and races, so all were equal in the society. Right now we have like different castes, okay, ST, SC, OBC, general, like all these castes. Then Hindu, Muslim, okay, हिंदू में भी है तो हम लोग लेवा पटेल, कड़वा पटेल, कणबी पटेल, लाइक दैट. तो एट दैट टाइम देयर वाज नो कास्टिज्म, सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी. सारे जो लोग थे वो सोसाइटी में कैसे थे? इक्वल थे. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होना ऑन द हाई एंड लो स्टेटस. देयर वॉज ऑल आर इक्वल. देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव नहीं था. किसके बीच में? हाई और लो स्टेटस के बीच में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. वुमन हैड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी एज फार एज मैन एंड वुमन व कंसर्न. सो किसका हाई स्टेटस था? तो वुमन का. फेमिनिज्म. फेमिनिज्म मतलब बिलीव दैट वुमन आर ऑल्सो इक्वल, वुमन शुड हैव ऑल्सो इक्वल राइट देन मैन. मतलब इक्वालिटी थी मैन और वुमन के बीच में वॉज देयर. एंड वुमन वर कंसिडर्ड एज को वर्कर्स एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल. ओके, दे वर कंसिडर्ड एज को वर्कर मतलब साथ में काम करने वाली. एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. आज भी कोई भी यज्ञ करे तो कपल है वो साथ में बैठता है. मीन्स एट दैट टाइम ऑल्सो जो वुमन थी उन लोगों का इम्पोर्टेंट था यज्ञ में. दैट वॉज एसेंशियल मतलब कंपल्सरी था. दे कुड ऑल्सो स्टडी मीन्स इवन वुमन कुड स्टडी. अलोंग देम अपाला, लोकमुद्रा, घोषा एक्सेट्रा क्रिएटेड रीचाज ऑफ ऋग्वेदा. रीचा मतलब श्लोक. ओके, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से वुमन थी उन लोगों ने जो ये ऋग्वेद है उसके अंदर क्या फॉर्म किया है? रीचा फॉर्म की है. सो अपाला, लोकमुद्रा एंड घोषा. गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट. मतलब चाइल्ड मैरिज सिस्टम नहीं थी. व्हेन दे गेट एडल्ट, मैच्योर होते थे तभी उन लोगों के मैरिज होते थे. मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेदा. डेफिनेटली दे लाइक वर्शिपिंग द नेचर. नेचर को भी वो लोग क्या करते थे? वर्शिप करते थे. वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेदा. किसकी पूजा करते थे? तो इंद्र, दैट इज गॉड का गॉड जिसको हम बोलते हैं वो इंद्र. देन वरुण, देन अग्नि. वरुण मतलब वायु, विंड. ओके, देन अग्नि, देन सूर्य. There is a mention of Usha as a goddess of morning and Aditi as a goddess of evening. That is also very important. वो लोग मॉर्निंग की गॉडेस मतलब देवी किसको वर्शिप करते थे? अदिति को. और इवनिंग की किसको वर्शिप करते थे? तो अदिति, सॉरी, मॉर्निंग की उषा को करते थे एंड इवनिंग की किसको कंसिडर करते थे? गॉडेस अदिति. Cows, horses and bulls have been discussed at many places in Rigveda. And during this Rigveda means so many times there was like discussion on cows, horse, bull. Means we can say that these are the animals and at that time they were the part of the life of people. As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their life. सो ये जो है बुल्स है, काउज है, उसकी कंपेयर में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ हुआ है? हॉर्सेस का. मीन्स वी कैन से कि जो हॉर्सेस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था. एंड यू नो वेरी वेल दैट अर्लियर किंग्स को जो भी मतलब फाइट करनी थी या वॉर करना था तो दे यूज़ हॉर्सेस. ओके, जो चैरियट था उसमें भी यूज़ करते थे. फिर जो सोल्जर्स होते थे वो भी किसके ऊपर मतलब राइड करते थे? तो हॉर्स के ऊपर. इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्राइबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स. और ट्राइबल मतलब जो बैकवर्ड ग्रुप होते हैं लोगों के, तो वो किसके लिए लड़ाई झगड़ा करते थे? तो एनिमल्स के लिए. प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटली इट इज़ लाइक कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनी. बट पहले के टाइम पे प्रॉपर्टी कौन कितना पुअर है और कौन कितना
रीच है वो किसके यूज से मतलब डिवाइड होता था. सो नंबर ऑफ कैटल. एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigvedic age. So first animal husbandry, okay, and then after agriculture. So both were the like main occupation on the stages of Rigvedic age. मतलब जो ऋग्वेद की एज थी वो टाइम पे ऑक्यूपेशन में किसकी मतलब इम्पॉर्टेंट थी. तो एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रेयरिंग ऑफ कैटल्स एंड देन आफ्टर agriculture. So that is the chapter, and in this chapter we have learned about ancient town and scripture. I hope it is clear to you. Still you have any doubts, so you can write it comment box, so I will try to solve it. And thank you for watching the video. Have a nice day.